Hi friends, welcome to English Study Point. Today here in this video lecture, I am going to discuss with you about a literary technique that is chiaroscuro. So chiaroscuro is a kind of Italian term. Here chiaro means thing which appears to us very clearer as well as brighter, and scuro here means thing which is very shadowy as well as darker. So it is a kind of literary technique which was first adopted by artists while creating their paintings in the late 15th century during the time of Renaissance. And artists, while using such kind of literary techniques at that time, they try to showcase us contrasting effects of lightness as well as darkness while using such kind of literary techniques. And writers as well as painters intentionally creates such kind of contrasting effects. They have intention because they want to emphasize upon their emotions, whatever the emotions as well as subject they are trying to communicate through their paintings. So that is why they use such kind of contrasting effects while creating their art. And later on, this kind of technique was adopted by dramatists while enacting their dramas. So actors, while enacting their dramas, they also use such kind of contrasting effects of lightness as well as darkness, because dramatist wants to bring audience eyes towards the focus point which the dramatist intends in a natural way. So that is why such kind of contrasting effects of lightness as well as darkness used by dramatists. And after many years ago, when dramatists followed this type of technique, later on again the writers started or adopted this kind of literary technique. They started using this type of literary technique because they want to also create or bring audience attention into focus point of whatever a writer is trying to convey via his writing. So that is why such kind of literary techniques used by first of all artists, then dramatists, and later on writers. So now let us understand about this term in a more elaborative way. So the word comes from Italian chiaro. So ये word chiaro एक इटालियन वर्ड chiaro से आया, जिसका मतलब कोई चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा क्लियर हो एंड बहुत ज़्यादा ब्राइट हो, एंड स्क्यूरो का मतलब होता है डार्क। एंड ये टेक्निक सबसे पहली बार विजुअल आर्ट्स में आई, एंड इस टेक्निक को सबसे पहले आर्टिस्ट ने अडॉप्ट किया था लेट 15th सेंचुरी में, जबकि उस टाइम पर रेनेसा का टाइम पीरियड चल रहा था। एंड इस टेक्निक को विजुअल आर्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया गया। एंड इस टेक्निक को यूज़ करने के साथ साथ आर्टिस्ट ने अपनी पेंटिंग्स के थ्रू कॉन्ट्रास्टिंग इफेक्ट्स को दिखाना चाहा अपनी पेंटिंग्स के थ्रू, जहाँ पर वो कुछ पेंटिंग्स के कुछ पोर्शंस को लाइट शोकेस करने की कोशिश करता, एंड दूसरी साइड वो पेंटिंग्स के कुछ पोर्शंस को बहुत ज़्यादा डार्कर शोकेस करने की कोशिश करता। वो ऐसा इसलिए करता क्योंकि वो अपने जो सब्जेक्ट उसकी पेंटिंग का है उसकी तरफ ऑडियंस की अटेंशन को ग्रैब करना चाहता, एंड वो ऑडियंस को बताना चाहता कि आखिर ये पेंटिंग मैंने किस सब्जेक्ट के ऊपर बनाई है। एंड साथ ही साथ वो आर्टिस्ट इस तरीके की लिटरेरी टेक्निक का यूज़ करके वो बताना चाहता था रीडर्स को कि जो वो पेंटिंग के थ्रू इमोशंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है वो किस टॉपिक पर बेस्ड है। तो दैट इज़ वाई ही यूजेस सच काइंड ऑफ लिटरेरी टेक्निक इन देयर वाइल क्रिएटिंग देयर आर्ट। एंड देन फिर लेटर ऑन क्या होने लगा, ड्रामेटिस्ट ने भी इस टाइप की टेक्निक को अपने ड्रामाज में फॉलो करना शुरू कर दिया। जैसे कि साइनेमेटोग्राफर्स, इफ़ यू हैव एवर सीन साइनेमेटोग्राफर्स ऑफ क्लासिक हॉलीवुड, दे dramatists also tries to use such kind of literary techniques in their plays, and in which they try to showcase us contrasting effects of lightness as well as shadowiness to give liveliness to their images as well as roles that they are enacting on stage. So that is why also dramatists use such kind of लिटरेरी टेक्निक्स। तो ड्रामेटिस्ट भी इन टेक्निक्स को यानी अपना स्टेज पर कॉन्ट्रास्टिंग इफेक्ट्स लाइटनेस और साथ ही साथ शेडोनेस के साथ इसलिए दिखाना चाहते थे ताकि वो ड्रामास के कुछ एरियाज़ पर ऑडियंस को एम्फेसाइज करवा सके कि उनके ड्रामा में जो वो रोल प्ले कर रहे हैं वो रोल आखिर किस सब्जेक्ट मैटर पर बेस्ड है। एंड कुछ एरियाज़ ऐसे भी होते थे जहाँ पर शेडोनेस का इफेक्ट क्रिएट करवाया जाता था ताकि ऑडियंस को रियलाइज़ करवाया जा सके कि ये रोल जो है आखिर में इररेलेवेंट है। तो लाइटनेस एज वेल एज शेडोनेस और साथ ही साथ ब्राइटनेस एज वेल एज क्लियरनेस को शोकेस करके ड्रामेटिस्ट इस चीज़ को शोकेस करना चाहता था ऑडियंस के सामने कि ड्रामास के कुछ पोर्शंस रेलेवेंसी को शो करते हैं एंड कुछ पोर्शंस इररेलेवेंसी को शो करते हैं। एंड द टेक्निक वाज पॉपुलर इन एंशिएंट ग्रीक। ये टेक्निक काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थी एंशिएंट ग्रीक में एंड साथ ही साथ रोमन आर्ट में। बट इन यूरोपियन पेंटिंग द टेक्निक वाज फर्स्ट ब्रॉट टू इट्स फुल पोटेंशियल बाय लियोनार्डो दा विंसी। कि दरअसल ये टेक्निक सबसे पहले इस टेक्निक को इम्प्लीमेंट किया एक पेंटर ने जिनका नाम था लियोनार्डो दे विंसी। इन्होंने इस टेक्निक को अपनी पेंटिंग में अडॉप्ट किया लेट 15th सेंचुरी के टाइम पर। एंड इनकी एक पेंटिंग है जिसका नाम है एडोरेशन ऑफ द मैगी। सो यहाँ पर मैंने उस पेंटिंग को शोकेस करने की कोशिश की है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे इस पेंटिंग में कुछ चीज़ों को डार्क यानी बिल्कुल क्लियर वे में दिखाया गया है, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइटर वे में चीज़ों को पोर्ट्रे करने की कोशिश की है। तो जब भी पेंटर्स या फिर ड्रामेटिस्ट या फिर राइटर्स कॉन्ट्रास्टिंग इफेक्ट्स को शोकेस करें तो उनका बेसिकली पर्पस होता है ऐसे कॉन्ट्रास्टिंग इफेक्ट्स को शोकेस करना। ऐसे इफेक्ट्स को शोकेस करके पेंटर जो है अपनी पेंटिंग्स के कुछ एरियाज़ को
दिखाना चाहता है कि ये एरिया यानी ये पोर्शन जो मैं क्रिएट कर रहा हूँ पेंटिंग के थ्रू वो दरअसल रेलेवेंट है। एंड जिस तरीके से पेंटर किसी पोर्शन को बहुत ज़्यादा लाइट दिखाने की कोशिश करता है तो वो पोर्शन यानी वो सब्जेक्ट मैटर इतना इररेलेवेंट नहीं है, फिर भी वो उसे मेंशन करता है क्योंकि वो एक पेंटिंग का पार्ट है, इसलिए मेंशन करना ज़रूरी है। तो इसी वे में कॉन्ट्रास्टिंग इफेक्ट्स को यूज़ करने का राइटर्स, आर्टिस्ट या फिर ड्रामेटिस्ट का पर्पस होता है, क्योंकि वो रेलेवेंसी और साथ ही साथ इररेलेवेंसी दोनों ही चीज़ों को शोकेस करना चाहते हैं ऑल टुगेदर वे में। देन showing contrast of light and shade which is used in the criticism of various literary forms। and साथ ही साथ बाद में इस टाइप की लिटरेरी टेक्निक को सबसे पहले आर्टिस्ट ने फॉलो किया, देन ड्रामेटिस्ट ने फॉलो किया, देन राइटर्स ने अपने लिटरेरी वर्क्स में इस टेक्निक को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया, जहाँ पर वो फिर से पोर्शंस लाइटनेस और शेडोनेस के साथ दिखाते थे एंड साथ ही साथ ब्राइटर चीज़ों को भी शोकेस करने की कोशिश करते थे। वहाँ से ये सिंबॉलीफाई होता है कि वो चीज़ों की रेलेवेंसी और इररेलेवेंसी को शोकेस करने की कोशिश किया करते थे। जैसे कि एग्जाम्पल है द स्कारलेट लेटर बाय नथानिएल हॉथॉर्न। तो यहाँ पर इस वर्क में हमें दिखाया गया है कॉन्ट्रास्टिंग इफेक्ट्स के थ्रू चीज़ों की रेलेवेंसी और इररेलेवेंसी की, कोई चीज़ कितनी ज़रूरी है एक टेक्स्ट में और कोई चीज़ जो है एक टेक्स्ट के लिए इतनी ज़रूरी नहीं है, बट फिर भी उसे टेक्स्ट का पार्ट बनाया गया क्योंकि उसके बिना टेक्स्ट अधूरा हो जाता। एंड देयर आइज वर वॉचिंग गॉड बाय जोरा नील हर्टसन। तो इस वर्क में भी जोरा नील के इस वर्क में, जिस वर्क का नाम है देयर आइज वर वॉचिंग गॉड, इस वर्क में भी कॉन्ट्रास्टिंग इफेक्ट्स को शोकेस किया गया है, लाइटनेस एज वेल एज डार्कनेस के इफेक्ट्स को, जहाँ पर अगेन वो रेलेवेंसी और इररेलेवेंसी को हाईलाइट करते हैं। एंड ऑल्सो हम ये देखते हैं कि इस टाइप की लिटरेरी टेक्निक को यूज़ करके ऑडियंस हमारी यानी एक राइटर या फिर आर्टिस्ट या फिर कोई भी ड्रामेटिस्ट हमारी एज अ ऑडियंस की आइज़ को फोकस में लाना चाहता है, अपने सब्जेक्ट मैटर पर रियलाइज़ करवाना चाहता है कि उसने इस सब्जेक्ट मैटर पर बेस्ड इस टाइप के वर्क को क्रिएट किया, इस टाइप की आर्ट को क्रिएट किया या फिर इस टाइप के ड्रामास को क्रिएट करने की कोशिश की। यानी वो ऐसे कॉन्ट्रास्टिंग इफेक्ट्स को शोकेस करके अपने इम्पैक्ट, चीज़ों को इम्पैक्टफुल बनाना चाहता है एंड इस इम्पैक्ट को वाइडर ऑडियंस के सामने रखना चाहता है कि इसकी क्रिएट की गई आर्ट का जो इफेक्ट है वो कितना ज़्यादा गहरा है। तो ये इंपॉर्टेंस होती है इस टाइप की कॉन्ट्रास्टिंग इफेक्ट्स को क्रिएट करने के साथ साथ वो राइटर या फिर ड्रामेटिस्ट या फिर पेंटर अपने सब्जेक्ट की वैल्यू को इंक्रीज़ करके उसकी वैल्यू का इन्फ्लुएंस रीडर्स पर करवाना चाहता है या फिर ऑडियंस पर करवाना चाहता है। दैट इज़ वाई वो इस टाइप के कॉन्ट्रास्टिंग इफेक्ट्स को यूज़ करता है अपने वर्क्स में। तो ये एक तरीके की चियारोस्क्यूरो एक टेक्निक थी जो कि सबसे पहले आर्टिस्ट ने अडॉप्ट की थी, देन ड्रामेटिस्ट ने एंड देन फिर राइटर ने। सो देन विद दिस पर्टिकुलर वीडियो lecture ends here. Hope this lecture will help you in your UGC NET English Literature exams.